Yeah. So now what is happening actually? The sugar we have got yeast with us. Now yeast are two variation. One is the ambient yeast, or we call it a natural yeast, and one is we called normal. I'm sorry, that's the chemical yeast, which is manufactured in the labs. Okay, right? Any fermentation will take 3 to 32 degrees Celsius temperature. Now remember one thing, yeast जो है, yeast का एक survive. See, at the end of the day, yeast is a bacteria. And we all know, according to our nutrition, that 4 डिग्री सेल्सियस से लेके 65 डिग्री सेल्सियस is known as a danger zone. Okay, because anything which survive in this, like any bacteria or anything like virus and all, everything will survive inside this temperature periphery. 3 to 32 degrees Celsius is the temperature where yeast survive. If you increase the temperature more than 32 degrees Celsius, then the yeast will die. This is, you have to remember. Suppose tomorrow, let's take an example, Shrishti Mehta becomes a sommelier. So then what will happen? When you become a sommelier, now Srishti opens a very wine harvesting, I mean like wine harvesting like a Sula and all at somewhere near close to Bhopal. So you should know that what is the fermenting temperature. 3 से लेके 32 degrees Celsius के बीच में you have to stay somehow. If you cross that, your bacteria will die. I mean the yeast will die, and naturally if the yeast will die, then the sugar conversion will not going to happen. Your fermentation process will going to get stalled immediately. Okay. Now probably that is the reason white wine is fermented at 15 degrees Celsius, because it is a low wine. It has got a low alcoholic strength. Warm temperature like the 22 degrees Celsius, where the heavy, harsh alcoholic strength wines are actually produced. In case of whiskey, vodka, gin, rum, there is no specific temperature, but you need to remain within 3 to 33. So 3 to 33 is a very, very utmost important temperature जो आपके दिमाग में अभी से कंट्रोल एस दबा के सेव करके रखना है. ओके. इसके बाद हम आएंगे फर्मेंटेड बेवरेजेस में. उसके बाद हमने देखा था कि साइडर, पेरी, वाइन्स एंड ऑल, these are all fermented alcoholic beverage that comes from Perry, that is pears. Cider is apple from England, and wines we all know it's famous all over the globe, that is made from grapes. Okay. इसके बाद there is something very interesting which is known as a distilled spirit. Now what is distilling? It is nothing but a boiling of alcohol. 78.5 डिग्री सेल्सियस में अल्कोहल बॉयल होता है. तो नेचुरली व्हाट इज डिस्टिलेशन? बेसिकली एक बात समझ लीजिए, कोई भी डिस्टिलेशन होने से पहले आपको फर्मेंटेशन की बहुत जरूरत है. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. थोड़ा सा आप अगर चाहे तो एक कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं. सपोज देखते किसके पास थोड़ा कॉमन सेंस है. बियर इज मेड फ्रॉम बार्ले. So beer is made from barley. Beer is fermented alcoholic beverage. Okay. So once the fermentation is done, if we boil beer, अगर हमने beer को boil कर दिया, तो वो कौन सा spirit बन जाएगा? कौन बोल सकता है ये? थोड़ा सा common sense use कीजिए. Beer is made from barley, हाँ? तो कौन सा spirit बन जाएगा वो? Distilled. Definitely a distill, but what is the name of it? Barley, huh? Beer is made. Yes. Who is it? Who is this person? Whiskey person? Tanish Kataria. Beautiful answer. Yes, it's whiskey. So ये है basically common sense, और इसको आपको दिमाग में रखना है कि बियर बन रहा था बारले से. मैंने क्या किया? बियर बनने के बाद उसको मैंने बॉयल कर दिया. 78 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा? बियर का पानी तो रह जाएगा और अल्कोहल बाहर निकल के आ जाएगा. उसको हमको कंडेंस करना है, ठंडा करना है. तो जो निकल के आएगा that is nothing but an pure alcohol. That is known as a whiskey. Okay. So basically आप यहाँ पे देखिए, you can take a look what I have tried to say from here, that sugar plus yeast का reaction हुआ, alcohol निकल के आ गया, and once the alcohol is out, then we just boil it. Once you boil it, उसके बाद क्या होगा? ये evaporation होगा. evaporation होने के बाद ठंडा करके उसको हम spirit बनाएंगे. यही वो spirit है जिसको हम कहते हैं ethyl alcohol. Now methyl alcohol is obviously not drinkable alcohol. Like ethyl alcohol is a drinkable alcohol. ठीक है? Now the next one that we say that alcohol boils at 78.5. इसको दिमाग में रख लेना, please people भूलना मत. Okay? These are all my spirits. और सीधी भाषा में जो हिंदी में हम कहते हैं spirit का हिंदी क्या है people?
व्हाट इज द हिंदी नेम ऑफ स्पिरिट? मदिरा, नहीं, नो मदिरा। नो 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 नो, मदिरा इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। ओके, बताइए स्पिरिट का नाम क्या है? कल लास्ट क्लास में, सैटरडे वाले क्लास में जो लोग थे उनको बोलना चाहिए यार। दारू। यस, ब्यूटीफुल। हु इज दिस? पल्लवी। यस, पल्लवी, फैंटास्टिक आंसर। यस, दिस इज आवर हिंदी लैंग्वेज में जो हम कहते हैं दारू, दैट इज नथिंग बट अ स्पिरिट। उसको ही दारू कहते हैं। वाइन इज नॉट अ दारू, beer is not a daru, cider is not a daru. Okay, if you say daru exactly, that is nothing but a all your white and black spirit. What is a black spirit or red spirit? हम किसको कहते हैं? ब्रांडी, विस्की, रम, जिन, वोडका, टकीला, these are all are white spirit. ठीक है, अभी आएगा कि ये जो बार बार मैं ये बोल रहा हूं कि बॉइलिंग ऑफ एल्कोहल, बॉइलिंग ऑफ एल्कोहल, सर बॉइलिंग ऑफ एल्कोहल तो बार बार आप बोल रहे हो, इसका मतलब क्या? सीधी बात है कि वो अपना जो ग्वालियर में रेलवे स्टेशन के बाहर में जो एम्बी वाइन्स है, आज शाम को जाके मैं वहां से लेके आता हूँ, कैबरने सोविनियो का एक बॉटल लेके आता हूँ, उसको पतीले के अंदर डाल के उसको गैस ऑन करो तो बॉयल हो जाएगा ना, काम, फिर काम खत्म, तो हो गया। इसी को ही अब थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड्स में लेके आते हैं। उसी आम्बी वाइन्स में जो वाइन बनता है, उस वाइन को लेके आने के बाद इसके अंदर अगर डाल दोगे, दिस मशीन के अंदर, इसका नाम है पॉट स्टिल। पीपल, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉट स्टिल। पॉट स्टिल इज अ वेरी वेरी ओल्ड, आई मीन नॉट अ वेरी ओल्ड, सबसे पहले डिस्टिलेशन मेथड जो है दुनिया का, सबसे पहले डिस्टिलेशन मेथड जो हुआ था वो एक्चुअली पॉट स्टिल ही था। तो पहले तो चलो वाइन वाज मैन्युफैक्चर्ड, देन व्हेन ब्रांडी एंड ऑल केम, दे ऑल केम विद द हेल्प ऑफ अ पॉट स्टिल। पॉट स्टिल में बेसिकली क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे एक पिक्चर देखने की कोशिश कीजिए, समझ लीजिए यही है वो आम्बी वाइन्स जो है आपका। मन हुआ आज क्लास खत्म करने के बाद, चलो यार चलते आम्बी वाइन से वाइन लेके आते हैं, तो आम्बी वाइन से वाइन लेके आके यहाँ पे आपने डाल दिया, ये जो कंटेनर है ना जहाँ मेरा रेड कलर का वो आ रहा है, इसमें आपने डाल दिया, नीचे राहुल सिक्का ने यहाँ पे वाइन डाल दी और नीचे तनिष्क जो है फायर कर दिया उसको। फायर करने के बाद क्या होगा, यहां वाइन जो है वो बॉयल होना शुरू होगा, बॉयल होकर इसका एवापोरेशन निकलेगा, एवापोरेशन निकलने के बाद इस पाइप के माध्यम से वो धुआं धीरे 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 यहां पे आके पहुंचेगा इस पाइप के अंदर। इन दिस पाइप इज बेसिकली सुपर चिल्ड, मतलब लाइक दिस पाइप इज एक्चुअली इमर्स्ड इनसाइड अ सुपर चिल्ड कंटेनर। ये जो कंटेनर है जिसके अंदर ये पाइप है, दिस इज सुपरली चिल्ड। अब इसी चिल्ड वाटर, अभी जैसे ये चिल्ड के अंदर जैसे ये एवापोरेशन आके जम गया, उसके बाद क्या होगा, इसको हम कहते हैं इसी चीज को हम कहते हैं कंडेंसर। ठीक है, इसका नाम है कंडेंसर। अब जैसे ही वो एवापोरेटेड जो एवापोरेशन है, जैसे ही वो ठंडा हो जाएगा, दैट विल टर्न इनटू नथिंग बट अल्कोहल। मैं बार बार इसको प्योर अल्कोहल बोल रहा हूं। Why I am saying every time it's a pure alcohol? Because इस अल्कोहल के अंदर लिटरली कुछ नहीं है, ये बस अल्कोहल ही है। कम से कम चलो वाइन के अंदर एक ग्रेप जूस था, ग्रेप्स के बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स थे, ओके, देयर इज सम लिटिल बिट ऑफ वाटर देयर, शुगर देयर, सब कुछ था, इसके अंदर कुछ नहीं है, इट इज जस्ट द प्योर अल्कोहल। हाँ, अब इस प्योर अल्कोहल के अंदर बहुत सारे फ्लेवर हो सकता है, जैसे कि वी ऑल नो दैट देयर इज अ absolute vodka which is flavored from black currant, pepper and all this thing. Flavoring is a different story, लेकिन वो जो भी है वो 100% अल्कोहल है, उसके अंदर कोई घोटाला नहीं है, मिक्सचर नहीं है, इसलिए that is too dangerous, I mean not too dangerous, if you drink it immediately, what will happen, you get completely hangover after 2 neat whiskey or brandy. Let me tell you a story. बेसिकली ये जो पॉट स्टिल वाला कंसेप्ट है, इसको हम सीधी भाषा में हमारे इंडिया में कहते हैं दारू की भट्टी। ठीक है, दारू की भट्टी। अब ये दारू की भट्टी बेसिकली कहां दिखता है, जैसे समझ लो जब्बलपुर के साइड में बहुत है, आप अगर दिल्ली से चंडीगढ़ जाओगे उस टाइम पे रास्ते के ऊपर यू विल सी हरियाणा के साइड में, या तो अगर स्पिरिट कैपिटल ऑफ इंडिया सोलन वैली जो शिमला में है, हिमाचल में, वहां पे अगर आप जाओगे तो वहां पे आपको ये चीज दिखाई देगा, पॉट स्टिल। इट्स बेसिकली अ ओल्ड सिस्टम, दारू की भट्टी। अब ये होता है पॉट स्टिल जहां पे आपको ये बॉयल किया जाता है एंड देन दिस थिंग, ओके।
सो पॉट स्टिल से बेसिकली सारे आपके ब्लैक स्पिरिट बनता है. इट इज सेड दैट ऑल द ब्लैक स्पिरिट जितने सारे है वो सब पॉट स्टिल से बने. इसके पीछे कारण है, वी विल कम टू दैट कारण. तो ये और एक इमेज है. कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ अल्कोहल को हम डबल डिस्टिल के करते हैं. डबल डिस्टिल मतलब पहली बार हमने उसको डिस्टिलेशन किया. फर्स्ट डिस्टिलेशन यू विल गेट एन अल्कोहल व्हिच इज अ 30% ऑफ लो, 30% ऑफ अल्कोहल, वेरी लो. उस वापस जो अल्कोहल आपका निकला ना, उसको आपने वापस बॉयल किया. तो जो आपके पास अल्कोहल है वो आम्बी वाइन से वाइन लाने के बाद आपने उसको बॉयल करने के बाद यू गॉट एन अल्कोहल व्हिच इज ओनली 30% अल्कोहल. उसके बाद आपने उसको वापस बॉयल किया तो क्या होगा, आपकी जो अल्कोहलिक स्ट्रेंथ है वो फिर से बढ़ जाएगा. दैट विल गो टू 75 प्लस प्लस सेकंड डिस्टिलेशन में. इसलिए जैसे कि समझ लो कोई भी वोडकाज है, जो रशिया में जो वोडका बनता है वहां पे बेसिकली उसके अल्कोहल स्ट्रेंथ 60-70 ऐसा होता है. हमारे इंडिया में कोई भी स्पिरिट है तो 42.5, उसके ऊपर जाएगा ही नहीं. नेवर इट विल गो, because if it will go then the temperature where we have in India, the people will just die. If you drink neat, I mean like without any chaser, if you drink a vodka 30 ml, दो बार लेने के बाद देखो what will happen, your throat will going to burn, and at the same time outside temperature is 42 degrees Celsius. आपका पसीना शुरू हो जाएगा and there is a literally chance that you will going to die or your throats might be burned or dehydrate हो जाओगे आप. Okay, so this is the main fact. Always this इस फैक्टर को कंसीडर करके एक्साइज डिपार्टमेंट ने कहा है कि 42.5 के ऊपर हमारे इंडिया के अल्कोहल, देसी अल्कोहल जो है वो नहीं जा सकता है. ठीक है, लेकिन यस कभी कभी फ्लेवर्स के लिए, कभी कभी अल्कोहल स्ट्रेंथ ज्यादा करने के लिए, जैसे आउटसाइड इंडिया में क्या होता है, मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, उसको डबल डिस्टिल भी करते हैं. ओके, दिस इज द कांसेप्ट ऑफ पॉट स्टिल, वेरी देसी एंड वेरी वेरी सिंपल मेथड ऑफ अल्कोहल कन्वर्शन. ठीक है, ऑल राइट पीपल, प्लीज वेक अप. जो सो गए थे सारे जाग जाइए. देयर इज अ क्विज आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम. देखते हैं आज का क्विज क्या है. ओके पीपल, प्लीज टेक अ लुक. जो माइक ऑफ करके बैठे थे माइक ऑन कर लीजिए. जो सो गए थे प्लीज जाग जाइए. I made a mistake, sorry, it is by mistake. चलो ठीक है. Okay, तो अब जब आंसर आपको दिख ही गया तो आप देख ही लीजिए. Okay, my setup was slightly wrong. But the quiz was what is greenback currency? किस करेंसी को greenback currency कहा जाता है? डॉलर को greenback currency कहा जाता है. Okay. Why it is said? Because the thing is that this is Benjamin Franklin when this the independence happened under the leadership of this person. So what happened that this dollar note is known completely green in color. So that is why it is said it's a greenback currency. Okay, इस करेंसी का नाम दूसरा नाम है, डॉलर के करेंसी का दूसरा नाम है ग्रीनबैक करेंसी. ठीक है, जस्ट अ नॉर्मल जीके. बिकॉज अगर आप देखोगे अभी दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इन हैपनिंग इन आवर शेयर मार्केट दैट पहली बार इंडिया में रुपी का रेट गिर रहा है. मतलब बेसिकली देयर वाज अ टाइम व्हेन वन डॉलर इक्वल्स टू 1 रुपी 1947 में. आज वो पहुंच चुका है $1 इक्वल्स टू 74.65. ये सिचुएशन था. बट कोविड-19 के बाद द वे इंडियन शेयर मार्केट इज राइजिंग, ये डॉलर की वैल्यू जो है, मतलब रुपी की वैल्यू जो है वो 64 से गिर के आज 73 में रुका हुआ है. मतलब 74.65 से लेके अभी 73 में रुका हुआ है. लुक एट द difference now. Okay, because the country is rising and growing actually, so that is the reason this thing is happening. इसलिए मैंने greenback currency का factor लेके आया था. but yes, I made a blunder mistake, sorry for this. Okay, चलो, knowledge is knowledge, whatever it is. तो पॉट स्टिल के ऊपर हम कुछ जान लेते हैं कि व्हाट आर दी पॉट स्टिल के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है. पॉट स्टिल देखिए, अल्कोहल जब बॉयल होता है ना, so remember one thing, it produces three important things. One is head, one is heart, and one is tail. So head is acetone and ester, heart is ethyl alcohol जो हम लोगों को ड्रिंक करना है, and then tail. But sir, and there is something called tail. The tail is basically known as a propanol, fusyl acid, and acetic acid. तो जो heart है that is the ethyl alcohol. एंड जो हेड है एसीटोन ईस्टर, ये अल्कोहल के साथ मिक्सचर होके आता है. एंड लेट मी टेल यू पीपल, ऑल दिस थिंग, योर हेड एंड टेल
are definitely not good for health. ये जो चीज है आपके हेड और ये टेल जो है, ये आपके शरीर के लिए बहुत ही खराब है. It sometimes leads to death. आपको शायद याद होगा, लास्ट ईयर की कहानी है, जब्बलपुर के आसपास एक ना शादी चल रहा था. तो शादी में वही भट्टी वाले जो दारू होता है सस्ता था, तो वो सस्ते वाले दारू जो है वो शादी में यूज किया गया. 65 पीपल वर हॉस्पिटलाइज्ड, जिनमें से 32 पीपल हैव डाइड. ह्यूज अल्कोहल ट्रेजेडी, ओके, बोल के एक केस था जहां पे क्या हुआ कि जे लोगों ने ऐसी नीट अल्कोहल नाचने के लिए शादी के टाइम पे सब पी लिया था. What happened that they all died. Not all died. Some of them stomach got burned, liver got burned, and some of them actually not able to recover. क्यों हुआ था? अच्छा वो मर क्यों गया? अच्छा ये विस्की जो है अभी आप यू बाय अ विस्की फ्रॉम, ये अपना गोले का मंदिर के सामने जो स्टॉल है वहां से आप लेके आइए ग्लेनफिडिच, उसके बाद समझ लीजिए लेट्स टेक एन एग्जांपल एम्पेरियल ब्रू, कोई आप तो पियोगे तो यू विल नॉट गो टू डाई. क्यों? फर्क ये है कि when this pot still distillation happened, उस दारू के भट्टी में जो दारू पैदा हुआ था, वो what happened there, they didn't remove all this thing. ये जो head and tail जो है उसको remove नहीं किया था. ये पीने से क्या होता है, चढ़ता बहुत है, hangover बहुत होता है, पसीना बहुत आता है, you will tend to get carried away, you will just get dance, but that leads to serious death. Okay, so this is your pot still का problem है. अब Excuse me, sir. yes please. Sir, what is ecotone or ester? Acetone and ester, देखो acetone and ester a chemistry person will tell you in a better way, but I mean like I just say one thing, that acetone and ester is a very dangerous chemical which will not good for your stomach, and it will also create hemorrhages in your I mean like brain. Now ये प्रोपेनॉल, फुजिलेटेड एसिटिक एसिड, ये आपके शरीर के अंदर जाके क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, दैट आई एम नॉट मास्टर ऑफ इट, बट लेट मी टेल यू वन थिंग के these are not good actually. Fine, I will do one thing, I will just find out the answer for this acetone और ester का मतलब लाइक क्या इफेक्ट होता है हमारे शरीर के ऊपर. नेक्स्ट क्लास में आई विल डेफिनेटली गोइंग टू टेल दिस टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू, इट विल ऑल्सो इंक्रीज माई नॉलेज एज वेल. ठीक है, राइट. सो पॉट स्टील के अंदर से, यस प्लीज. सर एसीटोन जो होते हैं ना, वो नेल पेंट हटाने के लिए यूज करते हैं, वो एसीटोन होता है. yes, absolutely right. And Pallavi, now I can remember that scene when हमारे घर में जब पेंटर्स आता है ना, तो वो पेंट करता है और उसमें ना वो एक बहुत ही जला हुआ स्मेल आता है उस टाइम से. They also use sometime acetone also. Okay, so that is actually known as acetone का मात्रा ज्यादा होने के कारण alcohol when you smell you will feel like अरे oof my god what a dangerous smell, and that acetone is actually your increasing your hangover. ठीक है. इसके अलावा चलो एसीटोन अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं कि अच्छा है, चलो हैंगओवर है, लेकिन ये फुजेल एसिड, प्रोपेनॉल, दीज आर डेफिनेटली नॉट गुड थिंग. ओके, टकीला, विस्की, रम्स एंड डार्क रम, एनी डार्क कलर स्पिरिट जो होता है वो बेसिकली, और जिसमें हाई अल्कोहलिक स्ट्रेंथ आपको ऐड करना है, मतलब बेसिकली सीधी भाषा में आपको पी के अगर यू थिंक दैट यू वांट टू गेट कंप्लीटली कैरिड अवे, दैट इज द थिंग यू शुड यूज इन पॉट स्टिल. बट यस, इसके बावजूद भी आज दुनिया के जो फेमस स्पिरिट्स जैसे कि समझ लो स्कॉच विस्कीज आर मेड फ्रॉम पॉट स्टिल बिकॉज द प्यूरिफिकेशन लेवल इज वेरी नाइस. ओके, ओवर देयर जितनी बार आप अल्कोहल को डिस्टिल करते हो, डबल डिस्टिल, ट्रिपल डिस्टिल, पॉट स्टिल में आपके ये सारे जो केमिकल्स है ये ना बाहर निकलना शुरू हो जाता है, और आपके पास ओनली एट द एंड ऑफ द डे इथाइल अल्कोहल और थोड़ा सा एसीटोन बच जाता है. बट इफ यू डोंट डिस्टिल इट, सिंपली अगर बॉयल करके कंडेंस करके छोड़ दो, देन व्हाट विल हैपन, देयर इज अ चांस दैट द पीपल, I mean like there is a chance that the alcohol might not get purified and there is a chance of death. Okay, this is the problem with the pot still. So you can take a look this picture, that why we get drunk after having spirit. You can take a look that the both this couple is holding a beer bottle in the hand, but look at this beer, we all know it's got a 8% max to max lager beer, 8%
alcoholic strength. So this gentleman is just having a half glass and he just got slept, and the lady is simply taking a selfie. Okay, so now why this thing is happening? There are lots of reasons for this. The first and foremost primary reason, the first timer, obviously when the alcohol will penetrate inside their body, it will going to mix with their blood, then what will happen? They feel like, like their head, जब ये दिमाग में जाके hit करता है, तो they feel very much like, क्या बोलते हैं, जैसे सर दर्द कर रहा है पहला दिन. Maybe that this girl is habituated of drinking beer, so obviously she is not feeling anything bad, and she's taking the selfie. What is happening with this lady? Because if you consume once in a week a beer, then it is become habituated. आज आप एक beer पियोगे तो next week को 2 beer, फिर third week को क्या होगा? You will drink 8 beers and nothing will happen to you. So this is what happening, because आपके शरीर क्या करता है उसके हिसाब से आपके बॉडी के अंदर एक they start getting habituated. But इसमें ना एक interesting fact ये है, see this. अब कहते हैं कि if you drink alcohol and suddenly after drinking you start vomiting and you get hangover very early, that means that your health is good. आपका शरीर सही है. अब लोग आपको ये कहेगा कि अरे यार इसको तो पीना नहीं आता, he don't know how to drink also. But the thing is that it means your health is responding well. But if you take a look at this lady who is completely drunk, it is good. I mean, like she is now going to she's feeling that okay, I am superior than men. But actually she is actually harming his livers and all, because हमने last video में ये चीज देखा था कि if you take a look at women's, they don't have they have less blood and more of fats and all. So what is happening when you have a less blood, the alcohol concentration will be high. But in case of women's men में क्या होता है, you have got a more blood. I mean we have like men's have a more blood. Now the alcohol concentration will take some time. So naturally the drinking effect of alcohol का जितना bad effects है वो सबसे ज्यादा girls के ऊपर होता है rather than a boy. Okay, so maybe after 3-4 vodka we will the men's will feel hangover, but the female will feel hangover very very fast, because females has most of the time they have cholesterol in their body. At the same time, they have also, fat and less number of blood. This is the main problem where the alcohol concentration will get very high, and okay, they feel drunk. Okay, right? But yes, once again, this theory also applies that if you drink every day, then you will not going to feel the same. But yes, never ever think about it to do it, because if you drink every day, naturally your liver is going to get damaged very fast. Okay, right? अब सबसे इंटरेस्टिंग बात आती है, ये जो पॉइंट है इसको थोड़ा ध्यान से रखना, इसका नाम है कंजीनर्स. व्हाट इज कंजीनर्स एक्चुअली? कि जो दारू पीने के बाद हम कहते हैं कि यार चढ़ गया, सिंपल लोग कहते हैं ना कि यार आज बहुत हैंगओवर हो गया. हु डज दिस हैंगओवर? कौन करता है? यार देखो सिंपल बात है कि एक्चुअली इथाइल अल्कोहल इफ समबडी ड्रिंक्स देन हैंगओवर नेवर हैपन. हैंगओवर तभी होता है जब दिस फुजेल ऑयल, एसीटोन, ऑल दिस थिंग गोज इनसाइड योर स्टमक. Okay, these are known as congeners. Now remember one very interesting fact. This congeners actually not good for health. This is also true, but this is also the fact is that even they are not good, but the manufacturers also want it. और ये जो congeners वही है जो पैदा होता है fermentation के टाइम पे. You cannot stop it. आप इसको बंद नहीं कर सकते. लेकिन एट द सेम टाइम इस चीज को भी ध्यान पे रखना कि दे आर नॉट बीन थ्रोन. मतलब लाइक अगर ये शरीर के लिए इतना ही खराब होता तो इसको तो हम फेंक सकते हैं, बट दे डोंट वांट इट आल्सो, बिकॉज यस, अगर सिंपल कहानी है, देखो यार, आई मीन लाइक पीपल इन इंडिया हैव अ मेंटालिटी दैट व्हाटएवर आई ड्रिंक, इफ आई एम पेइंग 1200 rupees for an imperial blue, if I don't get a hangover, what will happen? I'll go to throw that bottle back to the shopkeeper. इसलिए इंडिया में वाइन्स इतना नहीं चलता है, बिकॉज इफ यू ड्रिंक वाइन यू नेवर गेट अ हैंगओवर, यू गेट अ वेरी स्मूथ एंड नाइस फीलिंग. बट इफ यू ड्रिंक whiskey, vodka, gin, rum, definitely you get a dangerous hangovers. So manufacturer जानबूझ के इन केमिकल्स को whiskey के आई मीन लाइक स्पिरिट्स के अंदर रखते हैं, so that the people feel hangover. Obviously there is a rate for it. जब ये
chemicals बहुत हो जाता है, that leads to death and breakdown of health. Okay, these chemicals are known as congeners. People, very important, they are responsible for hangovers. Okay, देखिए ये सब क्या होता है. कंजीनर्स का मतलब होता है ईस्टर, ठीक है. उसके बाद आता है आपका एसिड, जैसे समझ लीजिए एसिड, एल्डिहाइड्स. स्ट्रिक्टली स्पीकिंग दे आर इम्प्योरिटीज बट दे गिव अ बेटर फ्लेवर. ओके, ये मतलब वही बात हो गई कि मतलब लाइक मुझे दवाई जो होता है, मेडिसिन होता है, वो मुझे पीना अच्छा नहीं लगता है बिकॉज इट हैज गॉट अ वेरी बैड टेस्ट. बट यस, it has a very bad taste, it is not good for health, but still people drink it because it gives a nice flavor, it gives a very nice I mean like passion, and people feel relaxed, people feel enjoy. That's why people drink, and that is why there is a need of congeners. If you drink beer or if you drink wine, you don't get a hangover, but you get a very nice relaxing mood. But if you drink whiskey in a very summer time, or in a very cold temperature, naturally what will happen, you feel hangover, your body will become heat up, and then even there is outside, you are standing on the mall road of Shimla in the month of December, you just feel that okay, nothing is happening outside, although there is a -2 degrees Celsius temperature. This is the effect of congeners जो आपको थोड़ा सा दिमाग पे रखना है. Okay, right. Now we move forward again, people. I know that it feels sometimes boring, but I can't do anything because the situation is slightly on a bad side because I have to complete. And remember one thing, this weekend, I mean like this weekend also we do a class in Saturday, Sundays. Okay. Okay, now we move to the next one, which says that advantages. Okay, देखो हमेशा एक चीज याद रखो that advantages, these are the disadvantage and advantage of pot still. Pot still का advantage क्या होता है कि pot still में spirit produce much more aroma because pot still is a very slow process. Generally कोई भी चीज आप slowly cook करोगे, naturally क्या होता है कि when you cook something slowly you get a very nice aroma because when you put it in a simmering temperature. और इसमें क्या होता है, इसका अल्कोहलिक स्ट्रेंथ जो है बहुत ही हाई होता है. Where in case of disadvantage क्या है, it take more and more time, lots of time it takes. And every time when you do this thing, you need to be all this containers and maintenance has to be done. I mean, cleaning has to be done properly. So these are the problem because pot still fermentation happen very slowly, but the quality that produce, it's really amazing. That is why दुनिया के जितने black spirit ऐसे समझ लो, brandy हो गया, whiskey हो गया, all are manufactured in pot still. Yes, अब जब धीरे whiskey के बारे में पढ़ने जाएंगे तो we'll take a look that in America some of the whiskeys are also manufactured in pot still and patent still. वो दोनों साइड में हो रहा है. Okay, so now if we take a look at the example of brandy and Scotch whiskey, they never do a distillation in patent still. They always happen in a pot still because doesn't matter, it will take some time, let them take it a time, I will produce the top quality of brandy of the world, something like this. Okay, तो इसके बाद हमारा पेटेंट स्टिल है. पेटेंट स्टिल में आप अब एक चीज देख सकते हो कि व्हाट इज पेटेंट स्टिल और दिस थिंग. नाउ पेटेंट स्टिल के 3 नाम हैं. अब देखिए क्या प्रॉब्लम हो रहा था, मैन्युफैक्चरर्स ने देखा कि पॉट स्टिल में बहुत टाइम लग रहा है, इट्स टेकिंग टू मच ऑफ टाइम. तो उस टाइम को कम करने के लिए अब टेक्नोलॉजी आ गया. लेट्स से ओनली लाइक 18 और 19 सेंचुरी के आसपास एक केमिस्ट ने, उसका नाम था एनायस कॉफी. उन्होंने क्या किया था, आयरिश मैन एनायस कॉफी. दिस नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट पीपल, थोड़ा सा याद रखिएगा. एनायस कॉफी बोल के एक आदमी था जिसने ये पेटेंट स्टिल को इन्वेंट किया. नाउ दिस पेटेंट स्टिल इज ऑल्सो नोन एज अ कंटिन्यूअस स्टिल, कॉफी स्टिल, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज I mean like patent still. So patent still, coffee still, continuous still, anything will be a part of it. Okay, it has got 2 columns, दोनों 2 कॉलम्स हैं. एक का नाम है एनालाइजर, एक का नाम है रेक्टिफायर. सीधी बात है, एनालाइज मतलब जो तोड़ता है, रेक्टिफाई मतलब जो जिसको कलेक्शन करके उसको प्यूरिफाई करता है. इसका मतलब पेटेंट पॉट स्टिल जो अभी तक था उसका बेसिकली एक अपग्रेडेड वर्जन आ गया मार्केट पे. लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, पेटेंट स्टील में ना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि कलरलेस लिक्विड निकलता है. एंड जनरली वोडका, जिन एंड व्हाइट रम आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम पेटेंट स्टील. ओके,
अब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को डिफरेंस क्या है। मतलब जहां पे इम्प्यूरिटीज है, जहां पे गंदगी है, जहां पे कंजीनर्स है, वहां पे पॉट स्टिल है। एंड व्हेन देयर इज ऑल दिस केमिकल्स आर देयर, देन द कलर ऑफ द स्पिरिट आल्सो गेट चेंज। But if you take a look at vodka gin white rum, there the color remain white, completely white, because पेटेंट स्टील में क्या हो रहा है, ये जो हमने अभी देखा कंजीनर्स को, हेड, टेल एंड योर अपना क्या नाम है इसका, हार्ट, ऑल दिस थिंग लाइक हेड एंड टेल जो था, जो विच वी डोंट नीड, दोज आर रिमूव फ्रॉम द पेटेंट स्टील। पेटेंट स्टील के टाइम पे वो हटा दिया जाता है, दे आर एक्चुअली गेट रेक्टिफाइड और प्यूरिफाइड। टेक ए लुक एट दिस इमेज नाउ, यू विल अंडरस्टैंड। सी व्हाट इज हैपनिंग हियर एक्चुअली। पेटेंट स्टील में, पॉट स्टील में हमने देखा था इट इज बर्न्ड बाय फायर, बट हियर इट इज बर्न्ड बाय अ स्टीम। स्टीम से बन रहा है। यहाँ पे आपका जो लिक्विड है वो इसके अंदर है, यहां से वेपर निकल रहा है, वेपर ने इसको बॉयल कर दिया, एंड वंस इट इज गेट बॉइल्ड होने के बाद यहां से इसका जो एवापोरेशन है वो निकल रहा है, जा 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 रहा है, ये देखिए यहां से पहुंच गया, पहुंच गया, पहुंच गया, पहुंच गया, पहुंच के सीधा ये यहां पे आता है। अब ये जो है इस कॉलम का नाम है रेक्टिफायर। नाउ व्हाट दिस रेक्टिफायर डज, सबसे पहले जैसे ये स्पिरिट इसके अंदर आता है, इट ब्रेक्स इट डाउन। स्पिरिट इसके अंदर आने के बाद सबसे पहले जो टेल के अंदर हमारा आ रहा था फूजेल एसिड, प्रोपेनॉल, उसको ये सेपरेट करके बाहर फेंक देता है। और ये ऊपर से जो हेड आता है, हेड में हो गया अपना जैसे कि एसीटोन एंड ऑल, उसको बाहर निकाल के फेंक देता है। तो रह क्या जाता है, ओनली इथाइल अल्कोहल। दिस इज नॉट हैपनिंग इन केस ऑफ अ पॉट स्टिल। पॉट स्टिल में क्या हो रहा था, हेड, टेल, एवरीथिंग गेटिंग मिक्स टुगेदर, ठीक है। लेकिन पेटेंट स्टील में क्या हो गया कि इसको हमने अलग कर दिया। दैट इज व्हाई इट इज मच मोर मॉडर्न, मच मोर फास्टर, मच मोर प्यूरिफायर, एंड द chance of liver or stomach damage is very less here. Okay, don't you think the hangover will be more? Yes, hangover will more or less remain the same. देखो, अल्कोहल पीने के बाद अगर आपको हैंगओवर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब देयर इज अ गलती, प्रॉब्लम है। लेकिन अल्कोहल पीने के बाद आपका पेट खराब हो गया, गला जल गया, लिवर खराब हो गया, दैट इज मोर डेंजरस। सो पेटेंट स्टील अल्कोहल में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन सॉरी, पॉट स्टील में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन पेटेंट स्टील में इसकी चांस बहुत कम है। अनलेस जो अल्कोहल पी रहा है वो अगर ये सोचे नहीं मेरे को वोडका पी के मरना ही है, तो वो मर सकता है, नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं है। इफ यू जस्ट टेक, आई मीन लाइक it is really, I shouldn't be saying this thing, but never ever try at your home. If you just take a, I mean like magic moments or Smirnoff vodka, open the bottle and just drink like water. Let me tell you one thing, this throat will going to get burned, this pharynx will going to get burned. So please people, don't ever think about it, okay? Because पेटेंट स्टील में प्योर अल्कोहल निकल के वापस आ रहा है, उसके अंदर बाकी और कुछ नहीं है। अब देखो, विस्की इफ यू ड्रिंक इट माइट नॉट हैपन, योर थ्रोट माइट नॉट गेट बर्न, बट वोडका के साथ ये चीज ट्राई मत करना, ओके? दिस लीड टू वेरी वेरी सीरियस एक्सीडेंट। पीपल, आई एम जस्ट बेगिंग यू, इट इज जस्ट फॉर योर नॉलेज ओनली, ओके? अल्कोहल इज वेरी गुड थिंग एंड एज वेल एज अ वेरी डेंजरस थिंग। अल्कोहल इज बून, आशीर्वाद भी है और एक बेन भी है, ठीक है, राइट? So once this alcohol reaches here, it is get cooled by the icy water and finally the alcohol is out, बाहर निकल के जाता है। तो देखिए, पहले हम लोग क्या कर रहे थे, आग लगा रहे थे, अब हम क्या यूज कर रहे हैं, स्टीम। नेचुरली यहाँ पे मेरा सबसे ज्यादा टाइम यहाँ पे कम हो गया। ये टेल और हेड को सेपरेट करने के लिए पॉट स्टील में मुझे डबल डिस्टिलेशन करना पड़ रहा था। नाउ इन वन डिस्टिलेशन ओनली आई हैव डन, ठीक है? And this is a very very modern style actually. That's the main reason that we have it done here, okay? So just hold on people, yeah, right, okay. So this is about patent steel and pot steel. People just when you have a time, we'll take a look at the disadvantage and advantage. Take a look. The advantage of patent steel is that very pure alcohol with no congeners, more quantity can produce, cost effective यहाँ पे है। और disadvantage यही है
कि इसमें से एरोमा और फ्लेवर्स नहीं आता है। बेसिकली अगर आप वोडका पी रहे हो तो यू वोंट गेट एनी फ्लेवर, ऐसा लगेगा कि कोरोना का वैक्सीन के टाइम पे जो आपने मिथाइलेटेड स्पिरिट लगाया था वही स्पिरिट आपने somebody has given you only. Okay, so there was a time when people without having alcohol, last year lockdown की टाइम की बात है, people alcohol मिल नहीं रहा था लोगों को, तो लोगों ने क्या किया, they drank sanitizer. Okay, they drank sanitizer because sanitizer had 70% of alcohol. More alcohol in the sanitizer, more good for corona. Okay, it's why it is said that like if you drink alcohol you won't get a coronavirus, but these are all myth. There was no scientific proven factors. Okay, right? इसके बाद आएगा आपका brewed and fermented alcoholic beverage, which is naturally known as, first of all, everything will be similar, but the change will be that ingredient through the boiling. Okay, and boiling में you will just there is an addition of ingredient. आप एक ingredients को add करते हो उसके अंदर, which is done by boiling. Now सिंपल कहानी जो मैंने लास्ट टाइम क्लास में कहा था, आपने कहा कि मम्मी एक अदरक वाली, अब अभी पिंकू धा में जाके क्लास के बाद बोलोगे कि अरे पिंकू भैया थोड़ा सा एक अदरक वाली चाय दे दो यार, तो पिंकू क्या करेगा, पिंकू पहले पानी गर्म करेगा, दूध डालेगा, चाय डालेगा और उसके अंदर फिर क्या कर देगा, जिंजर चॉप करके डाल देगा। लेकिन जिंजर के साथ आपको चाय नहीं देगा। व्हाट ही विल डू, he will just boil the tea with the ginger to extract the flavor of ginger inside that tea liquid. जैसे वो चाय बन गया तो you will, once you drink it, you will be getting a flavor of ginger. अब ये जो अदरक वाली फ्लेवर है ये सेम होता है बियर के साथ। बियर इज मेड बाय बार्ले बट इट इज ब्रूड विद हॉप्स। हॉप्स के साथ इसको ब्रू किया जाता है। ओके, ये ब्रूइंग, ये जो अदरक डाल के वो जो पिंकू भैया जो अदरक डाल के चाय को बॉयल कर रहा था, दैट इज नॉट अ बॉइलिंग, इट इज नोन एज अ ब्रूइंग। एक्चुअली वो ब्रू कर रहा था। ओके, सो दिस इज एक्चुअली नोन एज अ हॉप्स। इसका नाम है HOPS। बेसिकली दे आर नेटिव टू जर्मनी, क्योंकि जर्मनी का जो नेशनल ड्रिंक है वो है बियर। ओके, इसको देखने में कुछ इस टाइप का होता है, जस्ट लाइक भुट्टा काइंड ऑफ थिंग। एंड देन वी हैव आल्सो गॉट किंगफिशर बियर। यस, द बियर इज समथिंग व्हिच इज मेड फ्रॉम बार्ले एंड देन इट इज फ्लेवर्ड विद हॉप्स। ठीक है, राइट, सो दैट्स व्हाट अबाउट इट। चलो ठीक है, मैं प्रूफ में आने से पहले इस पॉइंट को थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूं। ठीक है, तो अल्कोहल अगर हम लोग देखें तो वी हैव गॉट फर्मेंटेड अल्कोहलिक बेवरेज, वी हैव गॉट ब्रूड एंड फर्मेंटेड अल्कोहलिक बेवरेज एंड वी हैव गॉट डिस्टिल अल्कोहलिक बेवरेज। इस कहानी को दिमाग में रख लो, बस सिंपल है, सीधी बात है। मैंने व्हीट लिया, गेहूं लिया, ठीक है, गेहूं को मैंने, सॉरी लेट्स टेक एन एग्जांपल, और भी सिंपल ये कर लेता हूं मैं बार्ले ले लिया, बार्ले को से बॉयल करके शुगर एक्सट्रैक्ट करके ईस्ट ऐड कर दिया, फर्मेंटेशन हुआ तो बन गया बियर। उसके अंदर हॉप्स ऐड कर दिया तो दैट विल टर्न इनटू अ ब्रूड फर्मेंटेड अल्कोहलिक बेवरेज। अब मेरा दिमाग में क्या आया, चलो छोड़ो यार, हॉप्स को फेंको, उसको सीधा हम बॉयल करते हैं। अगर उसको हमने बॉयल किया तो देन वी विल गेट समथिंग कॉल्ड विस्की। अगर बियर को हम बॉयल करते तो विल गेट एक्चुअली विस्की। ओके, सेम है, हमने सोचा कि वोडका है, वोडका बनता है किससे, व्हीट से। ओके, तो व्हीट से हमने उसको डिस्टिल किया तो बन गया व्हीट। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, ग्रेप जूस, मार्केट से ग्रेप जूस लेके आया। आफ्टर दैट वी जस्ट सिंपली क्रश द जूस, देन वी डिसाइडेड टू बॉयल द जूस। जैसे हमने जूस को बॉयल किया तो क्या बन गया, हाँ, ग्रेप जूस को बॉयल करेंगे तो क्या बन जाएगा, कौन बोल सकता है? इफ यू बॉयल अ वाइन, व्हाट इट विल टर्न इनटू, Brandy. absolutely, yes, absolutely. Who is this? Rishabh. Okay, fantastic, Rishabh. Yes, it will turn into a brandy, and that is why brandy is also known as, people सुन लीजिए, जान लीजिए और कभी भूलना मत, that is why brandy is known as a burnt wine. burnt wine, जला हुआ वाइन है brandy का नाम। Okay, right? And after this we will enter very interesting factor, proof. ना ये proof है क्या चीज? कोई भी अल्कोहलिक बॉटल को आप उठाइए और उसके बैक साइड में देखिए, there is something written 70 or 42.5 V/V, proof. Now what is proof actually? Proof basically ये बोलता है कि उस लिक्विड के अंदर कितना % अल्कोहल है।
सबसे पहले जब ये सिस्टम्स था नहीं तो पहले क्या होता, देयर इज समथिंग कॉल्ड गन पाउडर मेथड। अब ये क्या है? गन पाउडर में क्या होता है कि अल्कोहल आपने लिया, उसके अंदर आपने गन पाउडर, जो बंदूक वाला जो गन पाउडर होता है, उसको आपने मिक्स कर दिया, एंड देन यू जस्ट पुट अ लाइट। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, ये देखिए, ये बर्बन विस्की है, अमेरिका की विस्की है। सो यू पुट इट ऑन अ बोल एंड देन यू ऐड अ गन पाउडर, and then after that you just ignite this with a matchbox. If it ignites, that means there is an alcohol. If it don't ignite, that means there is no alcohol. Okay, तो बेसिकली सिंपल कहानी है, मतलब लाइक अगर हमने वोडका को जमीन में फेंक के, एक ग्लास के अंदर वोडका लेके अगर हमने उसके अंदर एक मैच स्टिक्स डाल दी, अगर वो जला नहीं तो वो वोडका नहीं हो सकता, वो पानी होगा या तो फिर सोडा होगा। अगर वो जल गया, नेचुरली यही होगा। आप अगर कभी लाइक वोडका से आप आग भी लगा सकते हो। ओके, प्लीज नेवर एवर ट्राई टू डू इट। इफ यू डू इट, व्हाट विल हैपन, द फायर विल come out and the vodka, I mean like that means that there is an alcohol. But naturally क्या हुआ कि धीरे धीरे people thought once again it's a dangerous thing, so then mathematics came in, और जैसे ही मैथमेटिक्स आ गया तो मैं तो भाग गया कि मेरे को मैथमेटिक्स तो आता नहीं है। तो उस टाइम क्या हुआ, कुछ स्केल सिस्टम आ गया, डिफरेंट स्केल्स। देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इतना सीरियसली मत लीजिए, बट आपके सिलेबस में है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। सबसे पहले आया था स्काई स्केल मेथड, और इसको हम कहते हैं ब्रिटिश एंड कैनेडियन मेथड। इसमें क्या हो रहा है, 57.1% अल्कोहल इज इक्विवेलेंट टू 100। ओके, अब देखो अगर कोई भी बॉटल में अल्कोहल स्ट्रेंथ इज 57.1, देन द प्रूफ इज 100 डिग्री। एक में कितना, और ये इट इज अ मैथमेटिकल सिस्टम, तो इसमें कितना होगा, आंसर होगा 175, समथिंग लाइक दिस। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये जो फॉर्मूला है इसका आंसर ये है, ये था स्काई स्केल मेथड। आई विल शेयर दिस पीपीटी विद ऑल ऑफ यू, प्लीज लर्न दिस मैथमेटिक्स। आई मीन दिस इज नथिंग टू वरी अबाउट इट, ऑल्सो देयर इज नो मैथ्स कम इन द एग्जामिनेशन, बट जस्ट फॉर द रिमेम्बरेंस, कैसे आप निकालोगे अगर आपको कैनेडियन स्केल में निकालना है। इसके बाद आ गया देयर इज समथिंग कॉल्ड अमेरिकन प्रूफ, तो दैट इज नोन एज 50% अल्कोहल, मतलब 50% अल्कोहल इज इक्वल्स टू 100 यूएस प्रूफ। अब अगर 100% है तो 200 के हिसाब से कितना होगा। उसके बाद एक आता है गै-लुसैक्स। तो बेसिकली आप बस इतना ध्यान रखिए कि देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल, वन इज स्काई स्केल, अमेरिकन स्केल एंड गै-लुसैक्स स्केल। दीज आर नोन एज 3 डिफरेंट प्रूफ्स। हाउएवर ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज V by V method is followed. V by V method जो है that is the British method. Okay, तो ये जो आपके सामने आ रहा है what is V by V, सॉरी, ये जो आपके सामने अभी आ रहा है कि V by V, ये ही आज दुनिया के हर जगह में फॉलो होता है। ओके, what do you mean by this? इसका मतलब ये होता है कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास 750 ml का बॉटल है जिसके अंदर व्हाइट रम है, उस 750 ml का लिखा हुआ है उसमें 42.5% अल्कोहल। तो इसका मतलब आप यही समझ लेना कि उस 750 ml का 42% है अल्कोहल, और बाकी जो है वो क्या है, वो वाटर है। बिकॉज यस इट इज ऑल्सो ट्रू दैट वोडका हो गया, व्हाइट रम हो गया, बिना पानी के तो बन नहीं सकता, पानी से ही बन रहा है, नहीं तो एवापोरेट कैसे हो रहा है। तो उसमें 42.5% आपका अल्कोहल है और बाकी जो सारे हैं वो पानी है। वाइन अल्कोहलिक स्ट्रेंथ इज 12 डिग्री 12% V by V। इसका मतलब है कि पूरा 750 ml का जो बॉटल है उसका 12% आपका अल्कोहल है एंड रेस्ट ऑल, सॉरी 12% आपका अल्कोहल है एंड रेस्ट ऑल इज अ वाटर। अब सवाल यह आता है कि सर देन अगर आप ऐसा ही बोल रहे हो 42.5, रशिया में या फिर अमेरिका में वोडका जो है वो मोर देन 42 में सेल होता है, वो कैसे पॉसिबल है? वो पता है क्या करता है एक्चुअली, उसको ट्रिपल डिस्टिल, जितना आप अल्कोहलिक बेवरेज को डिस्टिल करोगे, बॉयल करोगे, फर्स्ट यू डू द बॉइलिंग, यू गेट अ 30% अल्कोहल, सेकेंड बॉइलिंग यू गेट अ 60% अल्कोहल। अब नाउ इट इज इंडिया, आपका गलती से क्या हुआ कि 60% अल्कोहल हो गया, लेकिन आप तो इंडिया में हो, आपको उसको 42.5 में लेके आना है। कौन बोल सकता है कैसे हम 70% से 42.5 में लेके आएंगे? देखते हैं किसमें है कितना दम। सर वाटर मिला देंगे, क्या सर वाटर क्या मिला कर देंगे? देंगे। ओके चलो वाटर ठीक है, मिला उसके देंगे। अंदर ही दम।
Yeah, Rajneesh is there, and also there is somebody. Okay, yes, it's very simple and it's very excellent answer. I'm really feel good that yes, you have far better common sense than your, I mean, like the previous batches. Yes, very simple thing. पानी मिक्स कर दो, सीधी बात है. मतलब अरे यार गलती से 60 हो गया यार, इंडिया में तो मेरे को एक्साइज डिपार्टमेंट तो क्लियरेंस नहीं देगा. ठीक है, काम करना, पानी मिक्स कर दो उसमें. तो पानी मिक्स कर करके हमने उसका जो अल्कोहलिक स्ट्रेंथ है उसको रिड्यूस करके लेके आया 42.5 पे. अच्छा, एक बात और है, ये जो मैं बोल रहा हूँ कि 60%, 42%, हम व्हाट इज दैट apparatus और व्हाट इज दैट मशीन दैट इज यूज्ड टू मेजर्ड अल्कोहल इन अ लिक्विड? क्या है वो मशीन का नाम? मैंने अभी दिखाया था थोड़ा स्क्रीन में, थोड़ी देर के लिए आया था, बट yes, I haven't explained it. Which apparatus is used to measure the alcoholic strength of liquid? Nobody? कोई नहीं है ऐसा जो दे इसका आंसर. चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स वेरी नेचुरल. ये देखिए, इस स्लाइड में मैंने ये चीज दिखाया था. टेक अ लुक एट दिस. दिस इज द वन. इट इज नोन एज हाइड्रोमीटर. वापस बोल रहा हूं मैं, हाइड्रोमीटर. वापस बोल रहा हूं मैं, हाइड्रोमीटर. बार्थोलोम्यू स्काइज बोल के एक आदमी था, बार्थोलोम्यू स्काइज. मिस्टर स्काइज ने क्या किया, अल्कोहल को मेजर करने के लिए हाइड्रोमीटर की पहली बार इन्वेंशन किया था. That's known as the apparatus which is used to measure the alcohol. तो आप क्या करते हो, पानी के अंदर एक वो टेस्ट ट्यूब जिसको हम कहते हैं, केमिस्ट क्या करते हैं कि टेस्ट ट्यूब के अंदर उन्होंने अल्कोहल ऐड कर दिया एंड दे ऐड द वाटर. द मोमेंट दे ऐड द वाटर इट विल शो इन हाइड्रोमीटर 40, नहीं 50 हो गया, 60 बढ़ गया, फिर पानी ऐड कर दे, फिर डाउन हो गया. तो ऐसे करके दे यूज्ड टू मेजर द अल्कोहलिक स्ट्रेंथ ऑफ अ लिक्विड. ठीक है. So this is the way you can reduce the distillation of, I mean, like alcoholic strength of a liquid. Okay, fantastic, Rajneesh. And there is one more person who have given the answer. Great common sense people. I mean, yes, you can add the water. So this way we are done with our first chapter. इस chapter में सबसे important चीज है yeast के बारे में, sugar के बारे में, और we have learned about that flow chart. ठीक है, types of alcohol, and उससे भी जो important था pot still and patent still. देखो सीधी भाषा में कहा जाए कि पॉट स्टील एक ऐसा सिस्टम है जहां पे यू विल हैव अ डायरेक्ट अल्कोहल विदाउट एनी, you will have a direct alcohol with all the impurities, flavors, aromas which are good for party and enjoying but very worst for health. So people used to double distill that in pot still to remove all this thing. जितना आप डिस्टिल करते हो ये सारे निकलता जाता है. ओके, बट द प्रॉब्लम वाज पॉट स्टिल वाज टेकिंग सो मच ऑफ टाइम एंड द कन्वर्शन रेट ऑफ कन्वर्शन फ्रॉम वाटर फ्रॉम द लिक्विड टू अल्कोहल इज आल्सो वेरी स्लो, एंड आपको आग जला के करना पड़ता था. दैट इज वंस अगेन टेकिंग सो मच ऑफ टाइम. To avoid that, what the scientists thought about something called patent still, jahan pe you have to work very hard. There is a 2 chambers where your alcohol get automatically separated into 2 parts, head and tail. You have the pure ethyl alcohol. This is the story of your patent still and pot still. दुनिया के जितने सारे ब्लैक स्पिरिट्स है, जैसे कि विस्की हो गया, ब्रांडी हो गया, ये सारे आज भी पॉट स्टील में हो रहा है. सारे व्हाइट स्पिरिट है वो सारे आपके पेटेंट स्टील में हो रहा है. अब यहाँ पे एक कैच वाली बात है, जैसे कि समझ लो जिन है, जिन इज अ व्हाइट स्पिरिट. ठीक है, लेकिन जिन लंदन में जब मैन्युफैक्चर, जिन बेसिकली कम्स फ्रॉम हॉलैंड. नाउ नेदरलैंड आल्सो मेक जिन, लंदन मतलब लाइक इंग्लैंड आल्सो मेक जिन. क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये कि इंग्लैंड जब जिन मैन्युफैक्चर करता है तो सबसे पहले वो पेटेंट स्टील तो यूज करता है, बाद में फिर से पॉट स्टील भी यूज करता है. दिस इज वेयर वी हैव ऑल द प्रॉब्लम. सो नॉट अ प्रॉब्लम बेसिकली, दिस इज समथिंग लाइक they are giving the 2 stills at the same time so that pot still का aroma भी आ जाए और patent still का purification भी आ जाए. पहले मैंने अपने अल्कोहल को प्यूरिफाई कर ली, वो हेड और टेल को बाहर निकल दिया, उसके बाद मैंने patent still में pot still में डाल दिया. Because if I put it in a pot still, I'll get a very excellent flavor. So for the flavoring purpose,
ठीक है. So this is the main reason, or this is the main reason that the whiskey and sorry, I mean like your gins are patent stilled and also pot stilled. ठीक है, ये आपको दिखाई देगा बाद में. अभी हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है विल स्टार्ट विद बियर, विल स्टार्ट विद विस्की, वोडका, रम. आपको दिखेगा ये क्या सर आपने कहाँ था है कभी, एक और हो रहा है. ये विस्की में भी जैसे अमेरिका के जितने विस्की है वो सारे पेटेंट स्टील और पॉट स्टील में होता है. ये क्या सर आपने ये कहा था, ये हो रहा है. कहानी ये है, बिकॉज पेटेंट स्टील मुझे एरोमा दे रहा है, सॉरी पॉट स्टील मुझे एरोमा दे रहा है, पेटेंट स्टील मुझे क्या दे रहा है, इट गिव मी purification. So that is why both the systems are used. That's definitely damn expensive, and that is the, yeah, please carry on. Sir, can you please check chat box? Check chat box. Okay, चलो मैं पहुंच रहा हूँ वहां पे. ठीक है, तो चलो बस आज के लिए इतना ही था, बिकॉज इससे ज्यादा थोड़ा सा लोड हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे. ठीक है, क्या आ गया चैट बॉक्स में, देखते हैं. अच्छा, यही मेरा भी क्वेश्चन है. बाप रे बाप. Sir? No, I am not satisfied with this answer, because hydrometer is used not, yeah, I can understand specific gravity, but yes, it is used for this alcohol. Okay, I would like to measure the alcoholic strength, hydrometer is used. अभी gravity वाला issue क्या है, water is lighter than, ये में भी कुछ और issue होगा. मे बी शायद अल्कोहल इज लाइटर देन वाटर, वो भी उस कंसेप्ट को यहाँ पे यूज कर रहा होगा. बट आई एम सॉरी, आई एम नॉट अ ग्रेट साइंटिस्ट, सो आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस फैक्ट. दूसरा ये कि अल्कोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन द वॉल्यूम अल्कोहल. ट्रू, दिस इज आल्सो ट्रू, बट द थिंग इज दैट हाइड्रोमीटर इज यूज्ड एक्चुअली. ओके, सो इफ समबडी सेज दैट यस इज इट अ हाइड्रोमीटर और अल्कोमीटर, यू कैन से इट्स बोथ, नो वरीज अबाउट इट. ओके सर. अल्कोमीटर से ये अल्कोमीटर से अल्कोहल तो मेजर होता है. ठीक है, हाइड्रोमीटर से भी आप ये कर सकते हो. ठीक है, राइट. सो अल्कोमीटर, हाइड्रोमीटर, बोथ द आंसर इज राइट. ओके, ठीक है. बट इफ यू टेक अ लुक एट ईच एंड एवरी बुक्स, सारे बुक्स के अंदर यू हैव दिस एक्चुअली हाइड्रोमीटर ही वहां पे लिखा हुआ है. अब राइटर्स तो सारे मतलब दे आर नॉट द रॉन्ग पर्सन ना. तो चलो जो भी है ये कहानी, बट यस बोथ द आंसर इज राइट, नो प्रॉब्लम. ठीक है, राइट. सो ये है मेन कहानी. और कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए. एंड रिमेंबर वन थिंग विच इज डन विद द बेसिक्स ऑफ अल्कोहल. ठीक है, चलो मैं आपको फिर से एक बार सिलेबस दिखा देता हूँ, क्योंकि वो सबसे इसमें क्या होता है कि सबसे प्रॉब्लम ही होती है कि पब्लिक सिलेबस भूल जाता है. ओके, देख लीजिए एक बार हम लोग फिर से कहाँ पे रुक गए और कहाँ हमें जाना है. ओके, टेक ए लुक एट दिस. कहाँ गया एपोक्लिप्स? Yeah, here is it. Take a look at this. Long way to go, but we just starting the show now. So this part is over. Take a look. ये वाला part खत्म हो गया. इसके बाद मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से. अभी मैं इसके अंदर अभी जाऊंगा तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा एकदम, और हमारा जो सिलेबस है वो स्लो हो जाएगा. इसलिए इसके बाद हम जिसमें जाके हिट करेंगे वो है the third consumable alcoholic beverage on the planet, sorry, third consumable beverage of the planet, which is nothing but beer. So we're going to enter the beer now. So next class when we meet, we'll talk about beer. Very interesting class. All these things are very interesting, but I am very annoyed with this fact, the time limit which is given by National Council for this interesting syllabus of all is very less. ठीक है, तो चलो जो भी है उसके अंदर ही हमें करना है. इसके बाद हम स्पिरिट्स के अंदर जाएंगे एंड देन ही मूव टू एब्रेटिव. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास इट विल टेक एक्चुअली 2 क्लास टू कंप्लीट. आई विल ट्राई टू फिनिश बाय 1 क्लास, बट देन द इंटरेस्ट विल नॉट बी देयर. ठीक है, तो वंस अगेन पीपल, लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट द क्लास विल अगेन कंडक्ट ऑन द okay, sir, drinks can be mixed. Drinks can be mixed. Yes, Nelima, there is a world famous cocktail which is known as a Long Island iced tea, which is known as a Long Island iced tea, which is a mixture of 5 spirit: whiskey, vodka, gin, whiskey, brandy. There is a whiskey, brandy, dark rum. There is a vodka also. तो 5 spirit को mix किया जाता है. Yeah, spirit can be mixed, but yes, please try to avoid mixing of
व्हाइट एंड ब्लैक, इसका मतलब ये कि वोडका के साथ विस्की जितना हो सके कम मिक्स कीजिए, बिकॉज देन यू वॉन्ट गेट एनी काइंड ऑफ I mean like taste. It will just turned into nothing but a zahar. Okay, poison के अलावा वो कुछ नहीं बन जाएगा. Okay, so that is the main reason, right? Drinks can be mixed only in case of cocktails, but nowhere else. No manufacturer mix the cocktails. ठीक है, right? Okay. ठीक है. Anything else, people? Sir. हाँ जी, पल्लवी बोलिए. सर जैसे